Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्होंने अभी साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पीसीए विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ये पीसीए क्या है? पीसीए आपका प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, राइट। अब जरा बताओ ये पीसीए क्यों साइन किया गया, और सबसे पहले ये बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ मिलकर ये पीसीए साइन किया? तो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यूएचओ ने ये पीसीए साइन किया। और हम बात करें तो जो ग्लोबल ट्रेडिशनल हब है, ग्लोबल ट्रेडिशनल हब फॉर या फिर सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक हब सेटअप भी करने की बात की गई थी। इसके लिए इवेंट भी हुआ था एक, वो कहां पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और किसकी मदद से? ये भी डब्ल्यूएचओ की मदद से हुआ था। बेसिकली ये पीसी एग्रीमेंट क्या करा रहा है कि हम जानते हैं कि अभी जो हमारा रुझान है ना पूरे वर्ल्ड में, लोग हमारी जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती हैं उन पे ज्यादा फोकस होता है कि जो आपके पत्तों में आती है उन पे जो, लेकिन इस एग्रीमेंट के अंडर जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना है। कि हम चाहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ना, जो आपकी आयुष के अंडर आ जाती है, इनको हम बढ़ावा दें, इनको प्रमोट करें, इनके बारे में लोगों को जागरूक कराएं, और इनका जो एक्सेप्टेंस है ग्लोबल स्केल पर उसको ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी तरफ रुझान में आए और ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सेप्ट कर सके। तो ये आपका पीसी एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट को 2023 से लेके 2025 से लेके 2034 तक की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और इसी के अंडर अभी हम देखें तो पहला जो फेज होगा ना 2023 से लेके 2034 की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। 2023 से लेके 2028 तक का इसका पहला फेज रहेगा, राइट। अभी हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट फेज रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? 2023 से 2028 तक। और इसके अंदर जो ग्लोबल डेवलपमेंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की, उसको एक्सेप्ट कराने की बात की जाएगी। उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रोथ देखेगी। एंड अंडर दिस पार्टनरशिप डब्ल्यूएचओ प्रिपेयर करेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटेजी 2025 से 34 के लिए, राइट। तो ये है आपका पीसीए अग्रीमेंट। फिर इसके अलावा इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? बताओ जरा। इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी 8.4 गीगावाट का मार्क इन्होंने अभी अचीव किया। ये है अडानी ग्रीन, ये है अडानी ग्रीन, राइट। फिर अगर मैं बात करें इंडिया का पहला पोर्ट, इंडियाज फर्स्ट पोर्ट जिन्होंने हैंडल किया 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को, कौन सा पोर्ट रहेगा? वो है मुंद्रा पोर्ट। आप मुझे बताओ ये मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन क्या रहेगी? ठीक है। फिर इसी के साथ साथ 10वां एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल
ये हुआ कहाँ पे था? 10वां कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, तो भुवनेश्वर में इसको कराया गया था, राइट। फिर इसके अलावा जरा बताओ अभी किस स्टेट ने या फिर किस सिटी ने एक रिकॉर्ड बनाया 22 लाख दियाज को लगा के? इन्होंने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक करा। यह है अयोध्या, यह है अयोध्या, ठीक है। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर हम बात करें किस स्टेट के द्वारा एक फूड सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया गया टू, या फिर हम बोले जीरो हंगर के लिए फूड सिक्योरिटी कैंपेन। क्या नाम रहेगा इसका? मेघालय, मेघालय। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अप्रूव किया $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनटू आईटी हार्डवेयर सेक्टर। तो $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन आईटी हार्डवेयर सेक्टर किसके द्वारा अप्रूव की गई? ये है हमारे इंडिया के द्वारा। हम जानते ही हैं इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आईटी हार्डवेयर्स को मैन्युफैक्चर करने की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की बात की गई। एंड इसमें जो मेजर कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए। इंडिया में हम जानते हैं इंडिया को हम एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसके लिए गुजरात को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था कि जहाँ पे फॉक्सकॉन एंड वेदांता मिलके आपका सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन उनका वो एग्रीमेंट हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी गुजरात में हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है आपकी सेमीकंडक्टर्स उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली आईटी हार्डवेयर सेक्टर को ग्रो करने के लिए $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देखी गई इंडिया की तरफ से। आने वाले 5 साल में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और यहीं पे एक इंडिया का टारगेट भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया प्लान कर रहा है कि 2026 तक इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब सेक्टर रहेगा, आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये टारगेट रहेगा इंडिया का 2026 तक। और इस इन्वेस्टमेंट की मदद से हम देखेंगे आने वाले टाइम में 50,000 से भी ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ पे जनरेट करने की बात की जाएगी। मूविंग ऑन, तो आप देख सकते हैं इंडिया ने अप्रूव किया $360 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनटू आईटी हार्डवेयर सेक्टर, राइट। और यहाँ पे इंडिया का टारगेट रहेगा कि 300 बिलियन हम यहाँ पे अचीव कर सकें $, बाय 2026 इन द आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। मूविंग ऑन, हु हैज बिन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2023। तो 2023 की जो मिस यूनिवर्स अपॉइंट की गई है वो कौन है? शेनेस पेलासियोस। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, राइट, निकारागुआ। और पहली ये वीमेन बनी है निकारागुआ से जो अभी मिस यूनिवर्स क्राउन की गई। ये 72nd एडिशन था आपका ब्यूटी पीजेंट मिस यूनिवर्स का, ठीक है, जो 2023 में हुआ कहाँ पे था? एल सेल्वाडोर में हुआ था, ठीक। और अगर हम इनको देखें, इनकी बात करें तो ये है शेनेस पेलासियोस, निकारागुआ से है। 72nd ये एडिशन रहेगा आपका मिस यूनिवर्स का जो कि एल सेल्वाडोर में हुआ था, राइट, मार्क करेंगे इसको भी। फिर इनको क्राउन किया गया आर बॉनी गैब्रियल के द्वारा जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं, जो 2022 की जिनके पास टाइटल था मिस यूनिवर्स 2022 का। फिर फर्स्ट रनर अप रही यहाँ पर मिस एंटोनियो पॉलसेट जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और सेकेंड रनर अप रही मिस मोराया विल्सन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे इंडिया की मिस श्वेता शारदा, ये टॉप 20 में आई बट डिड नॉट रीच टू टॉप 10। एंड यहाँ पे 84 वीमेंस ने कॉम्पीट किया था इस टाइटल के लिए, इस क्राउन के लिए, और इस क्राउन को बोला जाता है द फोर्स ऑफ गॉड। एंड यहीं पे याद रखेंगे मिस कॉन्जिनियलिटी इनको अवार्ड किया गया, ये थी एथना पेरेज न्यूसे ऑफ स्पेन। ये वो पहली वीमेन ऑफ कलर बन गई टू रिप्रेजेंट हर कंट्री। एंड मिस पोर्चुगल मेरीना मोशाटे एंड मिस नीदरलैंड्स रिकी कोले, ये पहली ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेंट्स बनी। तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए। एंड वो पहली मदर कौन थी जो टॉप 10 तक पहुंची? वो है कैमिला एवेला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच पीस प्राइज वॉज प्रेजेंटेड टू कोविड-19 वॉरियर्स। ये कोविड-19 वॉरियर्स कौन होते हैं? जो कि आपके नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आपका जो मेडिकल स्टाफ हो गया, राइट, इनको यहाँ पर कोविड वॉरियर्स बोला जाता है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये वो इंडिविजुअल्स थे जो अपनी जॉब पर जाते थे और लोगों की यहाँ पे हेल्प करते थे, करेक्ट। तो किसको कौन सा पीस प्राइज प्रेजेंट किया गया था अभी कोविड-19 वॉरियर्स? तो उस पीस प्राइज का नाम क्या रहेगा? तो वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी कौन थी? ये हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की, करेक्ट। और इन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, राइट, इनके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और
ये आपको याद रखेंगे, यहाँ पे 25 लाख रुपए का भी आपको एक कैश प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये आपका किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराया जाता है। एंड इस बार अगर हम देखें तो इस प्राइज से अभी सम्मानित किया गया, इसको दिया गया, अवॉर्डेड टू द न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल जो कि प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, एंड प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज जो कि प्रेसिडेंट हैं टीएनएआई के, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इसके अलावा याद रखेंगे 2022 में लास्ट ईयर किसको सम्मानित किया गया था, एक एनजीओ था, एजुकेशन फोकस एनजीओ था, ये एजुकेशन बेस्ड एनजीओ था। एंड इस एनजीओ ने क्या नाम रहेगा इसका, प्रथम, इसको यहां पे सम्मानित किया गया था 2022 के इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो हैवियर मिलेई, इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना नए, तो वो रहेंगे हैवियर मिलेई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कुछ और अपॉइंटमेंट्स अगर जैसे मैं बात करूं, जरा बताओ किनको रिसेंटली अपॉइंट किया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज के कौन नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली, वो है संतोष कुमार झा। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, वो है दीपेश नंदा। ठीक, फिर इसके अलावा बताओ किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया यूके फॉरेन सेक्रेटरी, यूके फॉरेन सेक्रेटरी वो है डेविड कैमरॉन। ठीक, इसके अलावा बताओ किनको अभी अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टॉरेंट गैस, तो वो है मनोज जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटर्म सीईओ टू लीड ओपन एआई। हम जानते हैं अगर ओपन एआई की बात करें, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, राइट। चैट जीपीटी को इन्होंने लॉन्च किया, इसके सीईओ कौन थे तब, सैम ऑल्टमैन। लेकिन अभी बोर्ड के मेंबर्स ने सैम ऑल्टमैन को अपनी पोजीशन से हटा दिया एंड इन्होंने फिर इनको माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने इनको ऑफर किया कि आप आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्क कीजिए, आपको फुल लिबर्टी देते हैं, आपको जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है एआई के आप वर्क कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो ओपन एआई के जो और मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि अगर सैम ऑल्टमैन यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो हम भी उन्हीं के साथ यहाँ पे रिजाइन कर देंगे। तो अभी काफी सारी टीम अभी न्यूज में है कि काफी सारी टीम सैम ऑल्टमैन के साथ ओपन एआई को छोड़ के अब माइक्रोसॉफ्ट के डिवीजन में वर्क करेगी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई देयर। करेक्ट। फिर जब इन्होंने सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी को छोड़ा तो इंटर्म बेसिस पे मीरा मुराती को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया था इंटर्म सीईओ। लेकिन अब फिर से इनको हटाकर एमेट शेयर को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है एज द इंटर्म सीईओ टू लीड ओपन एआई। एमेट शेयर ये है कौन, एमेट शेयर याद रखेंगे ये आपके को फाउंडर थे ऑफ लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट ट्विच के 2011 में, और इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया एज द इंटर्म सीईओ ऑफ चैट जीपीटी ओनर ओपन एआई। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट ओनली है ये, लेकिन यहाँ पे बोर्ड जो आपके मेंबर्स होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं। करेक्ट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की फंडिंग दी थी ओपन एआई को जब ये चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था। करेक्ट, तो अब कौन है ओपन एआई के इंटर्म सीईओ, वो है एमेट शेयर। नेक्स्ट, विच कंट्री वन 6th टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। अभी हमने देखा था तो छठी बार किस कंट्री ने आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत लिया है, वो है ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया, राइट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, लोकेशन क्या थी, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। और यहीं पे याद रखेंगे ये हुआ क्या था, कौन से स्टेडियम में, ये था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये याद रखेंगे बिगेस्ट स्टेडियम है। एंड यहां पर हमें फाइनल मैच देखने को मिला था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे ऑस्ट्रेलिया विजेता रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, ट्रेविस हेड। हाईएस्ट रन किसके द्वारा बनाए गए इस इवेंट में, तो 765 रन बनाए गए कोहली के द्वारा। आईसीसी की अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, ग्रेग बार्कले। हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई यूएई में। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1909 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी F1 लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन।
इस विक्ट्री के साथ इन्होंने 18 रेसेस को जीत लिया है आउट ऑफ 20 इन 2023। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, राइट। ये तो थे फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं? चार्ल्स लेसलर, ये सेकंड पोजीशन पे आए। चार्ल्स लेसलर की बात करें तो ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, ये मोनाको से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। एंड थर्ड पोजीशन पे कौन आए फिर? ये है सर्जियो परेज। सर्जियो परेज थर्ड आए आपके, करेक्ट। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने यहां पे F1 लॉस वेगस को जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ के फरारी के चार्ल्स लेसलर मोनाको से जो है सेकंड प्लेस और सर्जियो परेज थर्ड पोजीशन पर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो जरा बताओ, अभी रिसेंटली लीगल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 नवंबर को। देन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर को। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। एंड झारखंड फाउंडेशन डे ये आपका 15 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटेरमन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये 18th फॉर्मर गवर्नर थे ऑफ आरबीआई, राइट। एंड 1931 में इनका जन्म हुआ था। 92 साल की उम्र में चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। 17 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो प्री मैच्योर बर्थ होता है उसके चैलेंजेस एंड जो उसके बर्डन आते हैं फॉर वीमेन एंड द बेबीज, उस जो आपके प्री मैच्योर बर्थ से एसोसिएटेड होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। फिर ये 2023 में इसकी जो थीम रहेगी वो है स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इंटरमीडिएट स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर, ये आपकी थीम रहेगी। फिर आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। मतलब जो रोड ट्रैफिक के विक्टिम्स होते हैं उनके को उनकी जो ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको जो उनकी जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट से या फिर जो सीरियस इंजरीज हो जाती है उनको लाइफ टाइम, उनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाता है 2023 में 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, राइट। जनरली ये थर्ड संडे को ऑब्जर्व किया जाता है, थर्ड संडे ऑफ नवंबर मंथ, राइट। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। थीम रहेगी रिमेंबर, सपोर्ट एंड एक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है इंदिरा गांधी के बर्थडे पर, राइट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और इसी डे को क्वामी एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन डे। इस बार 2023 में इसका इनकी 106th बर्थ एनिवर्सरी थी। और पहली बार जो ये क्वामी एकता दिवस या फिर नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार 2013 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और इसी से याद रखते हैं 19 नवंबर से आपका क्वामी एकता वीक भी शुरू हो जाता है, जो कि 19 से 25 नवंबर तक होता है हर साल। तो 19 नवंबर को तो क्वामी एकता दिवस दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन डे, और वीक शुरू हो जाता है 19 से 25 नवंबर तक। नेक्स्ट आ जाते हैं वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। ये भी 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनको उत्साह प्रोवाइड कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। एंड इसकी याद रखेंगे ये 10वां एडिशन था आपका वीमेन एंटरप्रेन्योर्स डे का। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मेंस डे। मेंस को ऑनर करने के लिए, इनके जो स्ट्रगल्स होते हैं अपनी लाइफ में उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जो देते हैं, वो हार्ड वर्क जो रहता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। एंड इस बार 25वां इंटरनेशनल मेंस डे हमने ऑब्जर्व करा। थीम रहेगी इस बार की जीरो मेल सुसाइड। तो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को। पहली बार 1999 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, ये भी याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। तो अभी असम के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है कैब सर्विसेज के लिए। एंड यहीं पर आपकी इसी एप्लीकेशन में आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। और इस यूपीआई फैसिलिटी के लिए इन्होंने फोन पे के साथ यहाँ पे टाई अप किया है। तो आई रिपीट, असम के द्वारा एक कैब सर्विस के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो वीमेन हैं, उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके। एंड 9000 से ज़्यादा सिटी कैब सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड, सिटी कैब्स को यहाँ पे एक तो ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फॉर प्रोवाइडिंग, उनको अर्न करने का मौका मिलेगा। एंड जो आपके यूजर्स होंगे उनको यहाँ पे सेफ्टी भी मिलेगी एंड टाइमली राइट्स भी यहाँ पे मिलेंगी। पेमेंट भी ये इजीली कर पाएंगे यूजिंग दिस यूपीआई बेस्ड फैसिलिटी, जो कि फोन पे के द्वारा इन्होंने टाई अप करा है।
किसने? असम की स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने, एएसटीसी ने। तो एएसटीसी ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिससे आप कैब्स बुक कर सकते हैं एंड उसी से आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स भी कर पाएंगे, और ये असम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन। डब्ल्यूएचओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पीसीए। इंडिया ने अप्रूव किया $360 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन आईटी हार्डवेयर सेक्टर। देन शेनिस पेलासियस फ्री निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, इनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2023। इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रेजेंट किया गया कोविड-19 वॉरियर्स को। हैवियर मिले इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। एमेट शेयर इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म सीईओ टू लीड ओपन एआई। देन आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे छठा टाइटल जीत लिया इंडिया को हरा के। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने अभी F1 लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटेरमन इनका निधन हो गया। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 नवंबर को। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स 19 नवंबर को। नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को। वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे 19 नवंबर को। इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को। और असम ने लॉन्च किया ऐप बेस्ड ESCT कैब सर्विस, जो कि आपकी यूपीआई बैक्ड डिजिटल पेमेंट भी आपकी उसी ऐप के थ्रू हो जाएगी, बुकिंग भी हो जाएगी और पेमेंट भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आ जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया अ रोबोटिक्स चैलेंज फॉर एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड इन स्पेस प्रोग्राम? ये कभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। इसमें क्या होगा कि हम फ्यूचर में जो हमारे रोबोट्स होंगे ना, जो कि स्पेस में हम उनको यूटिलाइज कर सकेंगे, जो स्पेस में यूज आएंगे, उन रोबोट्स को यहाँ पे डेवलप करने का काम किया जाएगा। और यहीं पर एक टैगलाइन याद रखेंगे, जिस टैगलाइन के ऊपर या फिर हम कहें जिस थीम के ऊपर ये आपका रोबोटिक्स चैलेंज लॉन्च किया जाएगा, वो है लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो ये आपका रोबोटिक्स चैलेंज रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? इसरो रोबोटिक्स चैलेंज UR राव सैटेलाइट सेंटर 2024, IROCU 2024, जो कि है इसरो रोबोट चैलेंज UR राव सैटेलाइट सेंटर 2024। ये आपका रोबोटिक्स का चैलेंज प्रोग्राम रहेगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इसकी टैगलाइन या थीम क्या रहेगी? लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। करेक्ट। ये जो रोबोट रहेगा ये आपका व्हील्ड भी हो सकता है या फिर लेग्ड भी हो सकता है, राइट। व्हील्ड या लेग्ड रोवर रहेगा जिसको बनाया जाएगा, जिसके बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे वर्क किया जाएगा। एंड इस जो ये प्रोग्राम है, जो रोबोटिक्स चैलेंज है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 20 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगी एंड ये एंड होंगी 15 दिसंबर को। जो विनिंग टीम है ये अवार्ड की जाएगी विद कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, जरा बताइए अभी रिसेंटली संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? 84 आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित करा गया था। फिर सिडबी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया ताकि MSME सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग की जा सके? सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए अभी सिडबी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया? तो टाटा पावर के साथ यहाँ पे इन्होंने टाइप किया। फिर बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक ने किन के साथ टाइप करा ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एनेबल किया जा सके? तो येस बैंक ने टाइप किया ब्रिस्क पे के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया अलोंग विद विच कंट्री साइन 2 अग्रीमेंट्स टू बूस्ट द यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज? 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया ने, किसके साथ? इंडिया एंड इटली के साथ ये 2 अग्रीमेंट साइन हुए इन दोनों के बीच में। एंड ये जो अग्रीमेंट रहेंगे ना, बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये 2 डे की विजिट पे थे टू इटली 2 एंड 3 नवंबर को, जब ये अग्रीमेंट साइन किए गए। इनमें से अगर एग्रीमेंट की बात करें तो पहला एग्रीमेंट रहेगा द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप का, राइट। इससे क्या होगा, जो मूवमेंट है आपके वर्कर्स की, स्टूडेंट्स की एंड प्रोफेशनल्स की इंडिया और इटली के बीच में, उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। दूसरा प्रोग्राम आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कल्चरल कॉर्पोरेशन। इसके के लिए क्या होगा, एक तो ये याद रखेंगे 2023 से 27 तक है। एंड इसके अंडर इंडिया एंड इटली के बीच में, जैसे हम देने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो वो इसके अंदर यहाँ पे एनेबल किया जाएगा। तो हम देखेंगे एक दूसरी कंट्री में जब इंडिया के बच्चे इटली में जाएंगे और इटली के बच्चे जब इंडिया में आएंगे तो एक दूसरे के कल्चर को वो एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो इसीलिए कल्चर्स को बढ़ावा दिया जा सके और अकेडमिक कोर्सेज को भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स लाए जा सकें। एंड ये 2023 से 27 के लिए इसको लॉन्च
किया गया। इससे पहले ये 2017 से 2020 के लिए लॉन्च किया गया था एंड फिर 20 में खत्म हो गया था ये एक्सचेंज प्रोग्राम और अब वापस से 2023 से 27 को लॉन्च करा गया। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बैग दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। तो किसके द्वारा जीता गया ये दाहन प्राइज? याद रखेंगे दीप्ति बबूता के द्वारा जीता गया ये दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। ये आपका जो प्राइज ये जो दाहन प्राइज है ये बेसिकली पंजाबी लिटरेचर के लिए दिया जाता है और अभी दीप्ति बबूता को इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जिसका नाम रहेगा हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। हंगर ब्रेथ लाइक दिस ये शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। दीप्ति बबूता यहाँ पे पंजाबी ऑथर रहेंगी एंड ये वो पहली वीमेन बनी जिनको सम्मानित किया गया दाहन प्राइज से। यहाँ पे 25,000 कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इनको सम्मानित किया जाएगा एंड ये 2 अलग से आपको फाइनलिस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा अगर और देखें करंट अफेयर्स तो ज़रा बताओ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती गई कार्लोस सेंस के द्वारा और ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ भारत में जब मोटो जीपी हुई थी, देखो मोटो जीपी क्या होती है? ये बाइक रेस होती है और जो आपकी F1 ग्रैंड प्रिक्स होती है ये कार रेस होती है। अगर मैं पूछूं मोटो जीपी भारत जो में हुई थी अभी यूपी में हुई थी तो यहाँ पे जो टाइटल स्पॉन्सर थे वो कौन सी कंपनी थी? वो थी इंडियन ऑयल, यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर थी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त किसको दिया गया? वो था बाबर आजम को और ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त थी आर्लिनी कैली। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ भी, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ICC के द्वारा एक ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? दिल जशन बोले। ठीक है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है अंतिम पंघाल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। और याद रखेंगे 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड इनको यहाँ पे की मैनेजरल पर्सनल का भी पोस्ट दिया गया ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 ईयर्स। ये रहेंगे अशोक वासवानी। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे दीपक गुप्ता को। दीपक गुप्ता यहाँ पे इंटर्म आपके चेयरमैन थे, याद रखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब इनको रिप्लेस करके अशोक वानी ने इनकी पोजीशन ले लिया एंड ये 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटेड रहेंगे। ठीक है, एंड अशोक वासवानी को 3 साल का एक्सपीरियंस है इन द बैंकिंग सेक्टर। करेक्ट, चलिए इसी के अलावा कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो ज़रा बताओ इंडिया का पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल या फिर OPD फैसिलिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? RML हॉस्पिटल के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, इंडिया की पहली डेडिकेटेड OPD फॉर ट्रांसजेंडर्स किसके द्वारा? RML हॉस्पिटल के द्वारा लॉन्च की गई। देन ई-भूमि पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया ई-भूमि पोर्टल। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई, 14th एडिशन था इसका, कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक, एंड फिर अभी प्रोजेक्ट अभिनंदन के अंदर कितने एयरपोर्ट स्टार्ट किए गए या कितने एयरपोर्ट्स इंक्लूड किए गए? तो 16 एयरपोर्ट्स इंक्लूड किए। प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया एयर इंडिया के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ 41st साइट जिसको ऐड किया गया इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, वो कौन सी है? वो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। एंड 42nd साइट कौन सी बनी? वो है होयसाला टेम्पल जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। नेक्स्ट कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अभी रिसेंटली नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया। इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया, इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऑफ NBFC जो कि बैक्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको।
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ आरबीआई की, शक्तिकांत दास यहाँ पे गवर्नर रहेंगे, जिनको A+ क्रेडिट रेटिंग भी, जिनको A+ रेटिंग मिली थी। हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। एंड 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए, अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। मास्टर कार्ड इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार को। ठीक है। फिर अभी ऋतिक रोशन को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? तो एक लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिलिल, इनका यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ, वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन जिनको अभी पैरा कमांडो वो बनी है, तो वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन जो कि पैरा कमांडो बनी वो है पायल छाबरा। पायल छाबरा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर एक चीज और, यहाँ पे कुछ ना आरबीआई के अपडेट्स हैं, ये भी याद रखना कि आरबीआई ने स्ट्रेंथन किया रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर लैंडिंग, मैंडेट्स हायर कैपिटल बफर फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसी के साथ साथ आरबीआई ने अलाउ किया ओपन करंट अकाउंट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स अलॉन्ग विद स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। एंड आरबीआई ने इम्पोज किया पेनल्टीज ऑन एक्सिस बैंक, मन्नापूर्णा फाइनेंस एंड आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस फॉर रेगुलेटरी वायलेंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 ये भी ऑर्गेनाइज कराई गई बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यहाँ पे बताओ कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, लोकेशन क्या थी जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर। तीसरा, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू मिटिगेशन अडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का, जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पहली बार देख रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हमारे व्यूअर हैं। जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे फ्यूचर में वीडियोस लाते रहें तो कमेंट करके जरूर से हमें मोटिवेशन कीजिए। राइट, मोटिवेशन मिलेगी तो और बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.